کالم اور اپیا کے ناظرین السلام علیکم۔ بابا محمد جیہ خان صاحب کی کتاب پیا رنگ کالا حاضر ہے۔ اگر ہماری کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہاں بابا، ادھر کھیت ہی کھیت ہے، مگر ان کھیتوں میں بھی تو لوگ رہتے ہوں گے۔ جس نے مجھے اتنے ڈھیر سارے بید سمجھائے وہ بھی تو انہی کھیتوں میں رہتا ہوگا۔ دیہاتوں، گاؤں یا کھلی مضافاتی بستیوں میں سورج صبح سویرے ہی درشن دے دیتا ہے اور شام کو شرم کے مارے مکھ بھی جلدی ڈال دیتا ہے۔ آج اس نئی بستی میں ان نئے لوگوں کے نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے یہ خانہ بدوش اس جگہ پہ نہیں آئے تھے۔ یہاں کے رہنے والوں کو ان کے مزاج، طبیعتیں اور ان کے اصل کاروبار سے واقفیت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا کاروبار حیات ہی مانگے تانگے یا کہیں ہلکی پھلکی محنت مزدوری سے چلتا تھا۔ صبح سویرے ہی ان کی عورتیں لڑکیاں روزی ہیلے کے لیے گاؤں کی جانب اتر گئیں، مرد لوگ جھونپڑوں کے باقی ماندہ کاموں میں جٹ گئے اور جونا ایک لڑکے کو لے کر شہر کی جانب چل دیا، کیونکہ اس کے ریڑے کے درے کا بیرنگ خراب ہو گیا تھا۔ کستوری کو وہ سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ پچھلی رات سونا تو درکنار، اس نے تو ایک لمحے کے لیے آنکھ تک نہیں میچی تھی اور اب پوری کھاٹ پہ سیاہ امبرین زلفوں کی سیج سی بچھی ہوئی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ کی ابنوسی ہتھیلی پہ چہرے کا سیاہ گلاب درے سہج سہج نامحسوس سے خراٹے لے رہی تھی۔ پیاری سی ناک، ننھے ننھے نتنوں پہ سانس بھرتے سمے ہلکا سا ارتعاش، کچے عنابی یاقوت سے ترشے ہونٹوں پہ ایک پاکیزہ سی ملکوتی مسکان، جیسے وہ کسی گہرے سپنے میں کھوئی ہوئی بانسری کی مدر تانوں سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ بانسری اپنے سمے میں ہی سما باندھتی ہے۔ یہ گھنگرو تو ہے نہیں کہ پگ لگیں اور جن جنانن بول اٹھیں۔ یہ بانسری تو لبوں کے لمس سے بھی سمے کی شرافت اور وقت کی نزاکت کا احساس و خیال مانگتی ہے۔ یہ تو ایک ایسا معشوق ہے جسے چوم کر منایا اور سر میں لایا جاتا ہے۔ دوسرے سازینے دیکھیں تو کسی کو سر میں کرنے کے لیے کسی کے کان مروڑنے پڑتے ہیں، کسی کی گول پتھر یا ہتھوڑی سے مرمت کرنی پڑتی ہے، کسی کی تنابیں کھینچنے کے لیے باقاعدہ زور آزمائی کرنی پڑتی ہے، کسی کے کھرن پر چماٹے مارنے پڑتے ہیں، کسی کو آٹا اور کسی کو سینک اور بانسری، یہ تو پھونک کے سازوں کی بدیع الجمال ہے۔ سیف الملوک اپنی بدیع الجمال کو اپنے سینے پہ لٹائے ٹبے کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹبا تو اب اس کے لیے سلسلہ کوئکاف بن کر رہ گیا تھا۔ پچھلی رات کے چاند اور ستارے تو کب کے کہیں جا کر سوئے پڑے تھے۔ اگر مسلسل جاگ رہی تھیں تو وہ اس کی آنکھیں اور وہی منمونی خوشبو کی رت تھی۔ وہ پچھلی رات کا شہر سے واپس لوٹا تھا۔ رات گئی، کھانا پینا اور دیگر حوائج ضروریہ۔ معلوم ہوا کہ داڑھ کی دکن کی طرح جب اندر کی لپک جاگ پڑے تو پھر ماں بعد کچھ بھی عام نہیں ہوتا۔ کھیتوں کا رکھوالا رات کھیتوں کو پانی دکھا کر، نیند آرام کے بعد دودھ نکال کر، گھر پہنچا کر واپس بھی پہنچ گیا، مگر محبوب ایسا خوشبو کے سنگ ٹبے پہ پہنچا کہ ابھی تک واپسی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آفاقی، ملکوتی، ماورائی خوشبوئیں دیوانوں مستانوں کے خوابوں کی مانند ہوتی ہیں، اور جب خواب اور خوشبوئیں آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں تو پھر دیوانوں کی نیند کہاں۔ بانسری کی نوائے نیم شبی کا آہنگ رنگ ابھی تک فضا میں رنگ گھولے ہوئے تھا کہ شکر دین نے رنگ میں بنگ ڈال دی۔ بہو محبوب، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ لالا تے بیبے پوچھ رہے تھے کہ محبوب رات کو گھر کیوں نہیں آیا۔ جا بہو، گھر جا کے تھوڑا سا آرام کر لے۔ ہوں؟ محبوب یوں چونکا جیسے شکر دین نے اسے کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات کہہ دی ہو۔ ہاں ہاں، جیسے اسے کچھ بھولا ہوا یاد آ گیا ہو۔ بانسری کو رومال میں لپیٹتے ہوئے ہولے سے کہا، شہزادی اب تو بھی کچھ آرام کر لے۔ کاغذات کا تھیلا اور بانسری سنبھالے وہ گاؤں کی راہ پہ ہو لیا۔ گاؤں کی جانب نکلنے والی یہ پگڈنڈی کوئی 1.5 فٹ لنگ آگے ٹبے کے دامن کو چھوتی ہوئی گزرتی تھی۔ ٹبے سے ذرا پہلے معمولی سی گہرائی سے گزرنا پڑتا تھا۔ دراصل یہ ایک برساتی پانی کی گزرگاہ تھی۔ جیسے جیسے محبوب آگے بڑھتا گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی خوشبو فشاں پہاڑ کی جانب رواں ہے۔ وہ پہاڑ اسے مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس کے پاؤں تیزی سے اٹھ رہے تھے۔
जबकि इस अमल में इसके अपने किसी इरादे का दखल न था। वो किसी सैरज़दा इंसान की तरह बेसुध सा आगे बढ़ रहा था। सूरज उसके पीछे और साया 20 कदम आगे। वो अपने साये की तवालत व हियत क़ज़ाई पर गौर करने पे मजबूर हो गया। साया तो जिस्म का मोहताज होता है, ये कैसा साया है? वो कुछ सोच कर रुक गया, बल्कि अपने कदमों पे बैठ गया, मगर वो साया न रुका और ना ही बैठा। वो अपनी राह चलता और बढ़ता रहा। आगे बरसाती नाले के किनारे एक खटल आम का छोटा सा दरख्त था। साया इस दरख्त के पास पहुंचकर रुक गया। ये इसरार इसकी समझ में ना आया। अचानक इसकी नज़र आम के दरख्त की जानिब उठी। वहाँ कस्तूरी खड़ी इसे लगावट भरी नज़रों से देख रही थी। साथ ही मस्त कर देने वाली खुशबू का एक ज़बरदस्त झोंका उसके नथनों से टकराया। कस्तूरी जैसे साये के कालीन पे पग धरती हुई इसकी जानिब आ रही थी। बालों की एक स्याह पानियों की साकत आबशार इसके जलू में थी और साया था कि सिमटा हुआ इसके साथ साथ चला आ रहा था। वो महबूब के सामने करीब आकर रुक गई। कई सदियां वो एक दूसरे को पहचानने वाली नज़रों से देखते रहे। तुम वही खुशबू हो जिसने यहाँ हर जिंदा चीज़ को बेखुद दीवाना सा बना दिया है। महबूब ने नज़रें हटाए बगैर कस्तूरी से पूछा। कस्तूरी के नाजुक लबों में जुम्बश हुई। और तुम वही बांसुरी हो जिसके सुरों की तान लिपटों ने वो सारे भेद खोल दिए जो अभी तक मेरे सपनों की धुंध में लिपटे हुए थे। तुम ऊपर टिब्बे को रहने आई हो ना? हाँ, वही टिब्बे से आई हूँ। अब हमेशा वहीं रहूँगी। तुम्हारी बांसुरी की मीठी मीठी भेद खोलने वाली सुरों को सुना करूँगी। तुम्हारी खोज में कैसी कैसी मुश्किलें और मुसीबतें झेली, बड़े बड़े कठिन इम्तहानों से गुजरी, तब कहीं जाके तुम मुझे मिले हो। महबूब ने उस ख्वाब आगी लहजे में जवाब दिया। हाँ, तुम वही मेरे सपनों और ख्यालों की खुशबू हो। मैंने जब से बांसुरी पकड़ी है मैं तुम्हारी ही सुरें तो अलापता रहा हूँ। मैं अपने इसी डेरे पे चांदनी रातों में टिब्बे को देखते हुए सिर्फ तुम ही को तो बांसुरी सुनाता रहता था। मेरे अंदर कोई कहता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगी। तुम्हारी खुशबू मेरे लिए कोई अजनबी नहीं है, ये तो सदा से मेरे साथ रही है, मुझे जीने का हौसला देती रही। और जानती हो मैं तुम्हारा क्या हूँ? हाँ, कस्तूरी बोली, तुम मेरे महबूब हो। सूरज कुछ और ऊपर चढ़ आया था। वो दोनों आमने सामने एक सीध में खड़े थे। दोनों का साया एक था। कस्तूरी के बालों और खुशबू का गांव भर में चर्चा फैल गया था। वो अपनी हमजोलियों के साथ गांव भर में हरनी की मानंद जकंदे बरती फिरती थी। एक घर से दूसरे तीसरे जहाँ जाती, सैन कोठे औरतों लड़कियों बालियों से भर जाते। हर कोई इसके नैन नक्श, सांवली सी दिल को कचौके लगाने वाली रंगत, दुनिया जहाँ से बेखबर और बेनियाज कर देने वाली महक, और रात का काला जादू भरी घनघोर घटाओं जैसी काली जहरीली नागनों सी बल खाती जुल्फ़ें देखता, जिनको चेहरे पे डालकर मर जाने को जी चाहे। लड़कियां औरतें इसके बालों को बालिश्तों से नाप नाप कर परेशान हो जाती, नाक धरकर सूंघती, अपने बालों से उन्हें मस करती। अक्सर लड़कियां औरतें उससे ऐसे लंबे महकते स्याह काले चमकदार बालों का राज पूछती तो वो हल्के से मुस्कुरा कर चुप रहती। कई औरतों ने रुपए पैसे के लालच से ये बालों का भेद जानने की भी कोशिश की। कस्तूरी के बाप जीवने को भी ये ख्याल सूझा कि इस बालों वाले नुस्खे से तो बहुत सा पैसा कमाया जा सकता है, क्यों ना यही धंधा शुरू कर दिया जाए। 3-4 तेल की बोतलें तो इसके पास महफूज थीं। इसने 1 बोतल असली तेल और 50 बोतलें सरसों का तेल के हिसाब से तेल तैयार करना शुरू कर दिया। इस गांव और इर्द गिर्द के गांव जिस लड़की को देखो वो इस तेल से सर की मालिश कर रही है। इस तेल ने भी ये काम दिखाया कि गंजियां और छदरे बालों वाली जुल्फ़े बंगाल का जादू बन गई। अब सारा कबीला ही इसी तेल के कारोबार में लग गया। 2-4 असली तेल की शीशियां तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। अब नकली और बेअसर तेल बिकने लगा तो नतीजा भी सिफर रहा। जीवने का दिल अब यहाँ से भी उचाट हो गया था। 2 माह रहने की मोहलत थी, अब 3रा महीना भी ख़त्म हो रहा था। इधर कस्तूरी और महबूब अपनी दुनिया में मस्त, कभी कस्तूरी खेतों वाले डेरे पे पहुंच जाती और कभी महबूब टिब्बे के ऊपर चला जाता। लेकिन इस सुर और खुशबू के मिलन की खबर अभी नौके ज़ुबाने ज़दे आम नहीं हुई थी। खेतों के नौकर चाकर या फिर सलमान जानता था।
कस्तूरी के कबीले वाले तो जानते थे कि ये महज वक्त गुजारी है जब टिब्बे से झोंपड़े उखाड़े जाएंगे और ये कारवान किसी नई मंजिल की जानिब हो रहा होगा, तो यहाँ के मामले तल्लक नाते भी यहीं रह जाएंगे और बंजारे अपना लादा लाद कर रवाना हो जाएंगे। जाने से पहले ज्यूने ने ये बालों वाला नुस्खा मुकामी स्पैरों और सन्यासियों को भी बता दिया कि तुम इसे बनाओ और माल पैदा करो। रवानगी से एक दिन पहले ज्यूने ने कस्तूरी को बताया कि बेटी कल सुबह सवेरे हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। महबूब के बाप ने हमें यहाँ सिर्फ 2 महीने रहने की इजाज़त दी थी और अब तीसरा महीना भी ख़त्म होने को है। अब कुछ मेरा जी भी मंदा रहने लगा है, पसरूर पहुंचकर किसी हकीम को दिखाऊंगा। कस्तूरी बाप की ये बात सुनकर बड़ी मुतमिन सी बोली, बाबा तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है और यहाँ से जाने का फ़ैसला सही किया है। तुम तो पूरे कबीले के मुखिया हो, तुम्हारा हुक्म या फ़ैसला हर कोई सुनता है। कल इस कबीले को रवाना हो जाना चाहिए, मगर बाबा इस कबीले का एक फ़र्द इस कारवान में शामिल नहीं होगा और वो तुम्हारी बेटी कस्तूरी होगी। ये मेरे मुकद्दर के मुखिया का हुक्म है और मेरे अंदर के बेदों का फ़ैसला है। जिस तरह तुम अपनी दुखन की दवा और दारू लेने पसरूर किसी सियाने के पास जाने का सोच रहे हो, इसी तरह मेरे अंदर की दुखन का दारू यहाँ मेरे सियाने के पास है। वो कदरे संजीदा सी कहने लगी, मैं जानती हूँ ये बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगी, लेकिन एक हकीकत तुम भी जानते हो कि मैं किसी मर्द को छू नहीं सकती, मेरा ब्याह नहीं हो सकता। मैं वो चीज़ नहीं हूँ जिसे घर या झोंपड़े में सजाया जा सके, और ना मैं वो गाय बकरी हूँ जिसे किसी खूंटे के साथ बांधा जा सके। मैं तो एक ख्वाब हूँ, सपना हूँ, एक आवारा मंजिल खुशबू हूँ। मैं इसी की हूँ जिसके सपनों में सजी हुई हूँ। योना दम साधे गुमसुम इस बच्ची का ये ना समझ आने वाला भाषण सुन रहा था। जब वो पैदा हुई थी तो बादल, आंधी और तूफान ने एक क़यामत उठा रखी थी। मशक्क़त से टूटी हारी दाइया ने इसे एक चेथड़े में लपाट कर झोंपड़ी के ऊपर वाले बांस पर लटका दिया था ताकि ये तूफान, आंधी और बारिश के ज़ोर और ज़द से महफूज रहे। कबीले वाले तमाम मर्दो ज़न अपने झोंपड़ों और सामान की फ़िक्र में लगे हुए थे। गधे, बैल, घोड़े, बाड़ें तोड़ कर भाग निकले थे। इसी अफरा तफरी और हड़बूंग में एक झोंपड़ी में आग लग गई। कबीले वाले इस बच्ची और इसकी माँ और दाइया को तो भूल ही गए कि इन्हें भी किसी की मदद की ज़रूरत हो सकती है। ज्यूना भी कबीले वालों के साथ इस तूफ़ान का मुकाबला कर रहा था। दाइया इसे बांध कर जिच्चा की जानिब मुतवज्जो हुई थी, जिसकी हालत लहजा लहजा दगरगूं होती जा रही थी। इसी दौरान आंधी का एक ऐसा झक्कड़ आया कि चश्मे ज़दन में रही सही झोंपड़ियाँ भी उखाड़ कर अपने साथ ले गया। तूफ़ान के साथ उड़ने वाली झोंपड़ियों में ये बच्ची वाली शिकस्ता झोंपड़ी भी थी। जाहिर है झोंपड़े के बड़े बांस से जो बच्ची की पोटली बंदी थी वो भी कहीं साथ ही उड़ गई थी। इसी कश्मकश और अफरा तफरी में सही निगहदाश्त न होने के बायस यूने की जोरू जुगनी की जीवन जोत भी जवाब दे गई। तूफ़ान थमा तो एक जवान लड़की, एक दमा मारी बुढ़ी, 2 गधे, एक घोड़ा, 2 बच्चे और ये कस्तूरी गायब थे। लड़की और बच्चा सही सलामत मिल गए। बुढ़ी मर चुकी थी। कस्तूरी वाला बांस मामा तप्पड़ करीब 2 कोस दूर बांसों के एक छोटे से ज़ख़ीरे में फंसा हुआ मिला। लगभग 12 घंटे बाद वो पोटली उतारी गई तो बच्ची सही सलामत मुंह में अंगूठा लिए गूं गूं कर रही थी। जीने के तस्वर में इधर ये फिल्म चल रही थी, कस्तूरी उधर बातें कर रही थी। कस्तूरी ने और क्या कुछ कहा उसने सुना ही नहीं। कस्तूरी चुप हुई तो ज्यूना दोनों हाथों में सर पकड़े झुक के बैठ गया। बाप बेटी के दरमियान एक भयानक सी खामोशी दर आई थी और जैसे हर गहरी खामोशी के बाद एक अहम का संग होता है, बिल्कुल इसी तरह अचानक महबूब आ गया। बेयक वक्त बाप बेटी दोनों की नज़रें उठकर इस पर जम गईं। बाबा, मैं तुमसे कस्तूरी का हाथ मांगने आया हूँ। मुझे आज मालूम हुआ है कि आप सब कल यहाँ से रवाना हो रहे हैं। वैसे ये काम मेरा नहीं, मेरे वालिदैन का था। मैंने अपने बुज़ुर्गों से इल्तिजा की थी कि वो तुम्हारे पास इस मकसद के लिए आएँ, मगर उन्होंने मेरी इस गुस्ताखी पर न सिर्फ मुझसे हमेशा के लिए तल्कात ख़त्म कर लिए, बल्कि सिवाय इस टिब्बे के अपनी तमाम जायदाद से आग करने की धमकी दे दी है। थोड़ी तवक्कुफ़ के बाद कहने लगा, बोल बाबा, अब तू क्या कहता है? ज्यूने ने गाट गाट का पानी पिया हुआ था। इन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है।
अयाश और दिल फेंक किस्म के लोग अक्सर इनकी छोकरियों के पीछे शादी या सच्ची मोहब्बत के चक्कर में इनकी झोंपड़ियों तक पहुंच जाते हैं। रुपए पैसे का लालच भी देते हैं, मगर ये खाना बदोश लोग बड़ी खूबसूरती से खा चाट कर तरह दे जाते हैं। और अगर ये बूढ़े अपनी छोकरियों के आशिकों की मुरादें और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरी करते रहें तो फिर एकाएक करके सारी छोकरियां छू मंतर हो जाएंगी। ये खाना बदोश मर्द अपनी उंगलियां छील कर चुपते रहें, मगर इस मामले में ज्यूने ने अपने तौर तरीकों से काफ़ी हटकर हकीकत पसंदी और सच्चाई से काम लेते हुए कहा, मैं इस वक्त ये बहस छेड़कर तुम्हारा और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता कि हम खाना बदोश अपनी लड़कियों के ब्याह कबीले से बाहर करते हैं या नहीं। इस वक्त मैं सिर्फ ये हकीकत तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ कि कस्तूरी ख़ास वजूह की बिना पर तुमसे क्या किसी से भी ब्याह करने के काबिल नहीं।